نہیں نکال دے مجھے داڑ. ولی اس آدمی نے انگور میں دان کی بجائے میری زبان پکڑ کر کہا کہ کلینک آتے ہو یا نہیں. داجی کس آدمی نے؟ اس آدمی نے. انگور اب بھی اس کے ہاتھ میں ہے. دان بچاؤ, گاؤں پہنچو. زیبو, یہ سب بچے کہاں چلے گئے؟ باہر کھیل رہے ہوں گے بیبے. تم بھی تو ان کو گھر میں ٹکنے نہیں دیتی. اے لو, میں نے کیا کہا؟ خامخا. السلام علیکم بیبی. وعلیکم السلام. خانشاہ بیٹا کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ارے خانشاہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں بیبے. وہ میری ماں کا ہے. تمہاری ماں اندر کام کر رہی ہے. ذرا میری بات سنو. تمہارے ابو کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بیبے. برکشانی آیا تمہارے ساتھ؟ ہاں بیٹا, اس نے تو مڑ کے خبر تک نہیں لی. کیسا ہے وہ؟ بیبے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آج کل امتحان کی تیاریوں میں لگا ہے. اچھا سمجھ گئی. تمہارے نانا اسے انگوٹھا چھاپ کہہ کے چھیڑتے ہیں نا, اس لیے. بیٹا تم منہ ہاتھ دھو لو, تھکے ہوئے ہو. اچھا بیبے. ہاں بیبے وہ داجی کا ہے. وہ تو حجرے میں اپنے مہمانوں کے پاس بیٹھے ہوئے یخنی کے کٹوروں کے کٹورے چڑھا رہے ہیں. یخنی کے کٹورے؟ اچھا تو شاعر صاحب یہاں بھی پہنچ گئے. الحمدللہ, بعد از تلاش بسیار آپ کا مکان معلوم کیا. ماشاءاللہ. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں حقیقت گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں. نہ بدرکا ہے نہ کوئی دیار راہ میں ہے. میں کچھ سمجھا نہیں. حکمت شامت ذلہو بات دراصل یہ ہے, جائے گا جب یہاں سے تو گھر نہ گھاٹ ہوگا. 2 گز زمین کا ٹکڑا تجھ کو الاٹ ہوگا. ایک وقت تم 2 گز زمین کا کیا کرو گے؟ اتنی فضول خرچی مت کرو. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہی تو میں کر رہا ہوں ایک وقت. فکر کی کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا. خدا راستی بہت یاد آ رہی ہے. ہستی ناپائیدار کے گریزپا لمحے یاد آ رہے ہوں گے. کیا؟ جوانی کا خواباغی زمانہ یاد آ رہا ہوگا. چھوڑو مڑا, انسان ہو کے جناتوں کی زبان بولتا ہے نیک بختہ. مگر کیا مگر؟ سب مایا ہے, سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. جو تم نے کہا ہے, فیض نے جو فرمایا ہے, سب مایا ہے. مجھے بھی کچھ فرمانے دو گے یا تم خود ہی مسلسل فرماتے رہو گے مڑا؟ ارشاد. کون ارشاد؟ اچھا چشتی. وہ غریب تو آج کل بہت سخت بیمار ہے. ارے بھائی میں کہتا ہوں, کہو کیا یاد آ رہا ہے؟ روٹی یاد آ رہی ہے نیک بختہ. کل سے 1 نوالا تک نہیں چھوڑا, صرف یخنی پر گزارا ہے. لو اور سنو, میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ گویا دنیا کی نرنگیاں خصوصاً امت مسلمہ کی موجودہ حالت زار آپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہوگی.
इसी पर तुम्हें आधी रात को उठकर आंसू बहाता हूँ। सिर्फ आंसू बहाते हो या कुछ अमली काम भी होता है? जब पेट खाली हो तो इतने बड़े बड़े मसाइल पर सोचना मुमकिन नहीं, समझा करो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अपने साथ क्या लाए थे? मैं आपकी सेहत कामना की नेक तमन्नाओं के साथ आया था। और मुझे कहते हो कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल के असबाब लिखो। अजीब आदमी है। यार कश्मीरा, तुम क्या लाए थे? जी मैं एक गरमा लाया हूँ, सेब और अंगूर लाया हूँ। हाँ, और वो तुम खुद हड़प कर गए। ये है हमारे यहाँ उम्मत मुस्लिमा की मिजाज पुरसी का तरीका। जी, मेहमान उस वक्त तक बीमार की गर्दन पर सवार रहता है जब तक वो अपने साथ लाई हुई चीजों का सफाया खुद नहीं करते। ला हौले वला। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी तकरीब पर हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। बकौले शायर, तकरीब कुछ तो पहले मुलाकात चाहिए। इंशाल्लाह जब मुझे अस्पताल में फिर कभी डॉक्टर तख्ते मश्क बनाए तो हाजिर खिदमत हो जाना, ठीक है? जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, वो याले का शामिरा। अब मुझे इजाजत दीजिए। कितनी इजाजत मांगोगे निकबख्त? जाओ खाना। जो बजो की बातें झूठी सब्जी का बेलाना हूँ, फिर भी हमसे जाते जाते एक गजल सुन जाना हूँ। गजल सुनने के अलावा भी मेरे बहुत से काम है। जाओ, बस जाओ यारा। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तुमसे सिर्फ खुदा ही छुटकारा दिलाएगा। बात सुनो। सुनाओ। अभी तक अस्पताल में पड़े हो या दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है? हजरत, अल्लाह ताला के फजलो करम से 6 बच्चों का बाप हूँ और बसरे रोजगार आपकी दुआ से। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बख्ता क्या लाटू है यार। हाँ अच्छा बाबा, आप कुछ कह रहे थे। सब कुछ भुला दिया नेकबख्त ने। क्या कह रहा था? हाँ, वो अपने चचा को भेजो, सरकार से वो स्कीम की वो जमीन के पैसे वसूल करना है। हाँ याद आया, मलक साहब और चचा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बंदल खाना साहब का हुक्म है कि गांव की जमीन स्कीम के लिए पेश नहीं होगी। बस सिर्फ बस से तो काम नहीं चलेगा ना मलिक साहब, कुछ मंसूबाबंदी करना होगी, कोई प्रोग्राम बनाना होगा, तरीके कार सोचना होगा। तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन अगर गांव के लोग ना माने तो? ना, फिर तो तुम साहब के चमचे ना हुए ना। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं भी हूं, लेकिन जरा बड़े साइज का। हाँ। हिकमत शाह ने अगर गांव के लोगों को सही रास्ता ना दिखाया तो ये लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे। हाँ मलिक साहब, यही तो रोना है। खाना ऐसे करते, काम तकसीम कर लेते। यानी कि कैसे? जरोली को तुम संभालो, राशा ओली उसको मैं समझा दूंगा। हाँ ठीक, ये बात ठीक है। मैं हूं आपका गुलाम, बल्कि जरखरीद गुलाम। मुझसे जो सलूक करो मैं हाजिर हूं। दिन को हाजिर हूं, रात को हाजिर हूं, दोपहर को हाजिर हूं, शाम को हाजिर हूं। तालियां शुरू, तालियां बंद। आगे क्या कहूं? अच्छा, तीर पे तीर चलाओ। तुम्हें डर किसका है? ये दिल किसका है? मेरी जान, मेरी जिगर, ये जिगर किसका है?
میرے پیارے بھائیوں، اتفاق میں بڑی برکت ہے. اتفاق سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرکار نے جو زمین اسکیم کے لیے منظور کی ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے آباؤ اجداد کی زمین پر بلڈوزر، ٹریکٹر اور باری مشین چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہیلو مری؟ کون سی والی مری؟ اچھا اچھا، وہ والی مری. تو حضور آنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ بس یوں آیا، ابھی آیا، ابھی. ہاں ابھی. سر کون مری؟ کوئی نہیں مری، وہ والی مری، وہ پہاڑوں والی مری. اچھا اچھا اچھا، وہ والی مری، وہ سردی والی مری. سردی والی مری. اب آپ لوگ تشریف لے جائیں، کیونکہ میں آپ ہی کے مسائل حل کرنے کے لیے مری جا رہا ہوں. جی میرے نوکری. ارے میں مری جا رہا ہوں. آپ ہی کے کام کے لیے جا رہے ہیں. کیوں مان گئے نا سر؟ یار بہت استاد سٹینو ہو. بلاؤ بلاؤ بلاؤ. رازق، وہ ملک صاحب کو بھیج دو. صاحب اجازت ہے؟ آئیے آئیے ملک صاحب، آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. اچھا، تو یہ ہے جناب شاہ ولی صاحب. جی، خادم کو شاہ ولی کہتے ہیں. شاعر ہیں اعلیٰ پائے کے. بہت خوب، بہت خوب. پھر تو آپ کا مجموعہ کلام بھی ہوگا. الو نامہ تصنیف کیا ہے، مگر ابھی زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوا. بھائی، ہم کریں گے آپ کی کتاب کو زیور سے آراستہ. میرا مطلب ہے کہ زیور طبع سے آراستہ. اچھا جناب، یہ تو مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان. ارے یہ کون سی بڑی بات ہے. آف سیٹ پر چھپائی پسند کریں گے یا ونڈا ٹیک پر؟ جی، میرا مطلب یہ ہے کہ کتابت خط نسخ میں بہتر رہے گی یا خط نستعلیق میں؟ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے الو نامے کو کمپیوٹرائز بھی کرا سکتا ہوں خط نوری میں. مگر سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو سمجھائیں، اسے سمجھائیں کہ اسکیم وسکیم کے چکر سے باز آ جائیں. صاحب آپ بالکل بے فکر ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا. میں پھر آپ کے الو نامے کی اشاعت میرے ذمہ. اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جی، یہ ہے الو نامہ. فی الحال آپ یہ قیمتی نسخہ یعنی کہ یہ الو نامہ اپنے پاس رکھیں. ہاں، البتہ ایسا کریں کہ اس کی ایک نقل بنا کر ہمیں پہنچا دیں. نوازش، شکریہ، مہربانی. خدا ملک صاحب خدا حافظ. سر، اس کو کہتے ہیں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا. وہ دوسرا شکار کہاں ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام حمدل خان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. جناب والا، زرولی بہت ہی مؤدب، بہت ہی تابعدار اور بہت ہی نیک بندہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ تو زرولی کی شکل ہی سے ظاہر ہوتا ہے. مہربانی جناب، مہربانی، بڑی مہربانی. بیٹھے بیٹھے، تشریف رکھیں. زرولی صاحب، آپ کے بال بچے کیسے ہیں؟ جی، وہ بچی تو ابھی نہیں ہے. اچھا، تو اس کی یہ پرابلم ہے؟ پرابلم؟ جی ہاں، بس یہی پرابلم. کوئی بات نہیں، ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ نکالیں گے اس کے مسئلے کا.
अस्टीनो जी सर। आप तो हाथ की लकीरें देखने में महारत रखते हैं ना? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये है किस्मत का हाल, हाथ की लकीरें। हाँ हाँ समझता हूँ सर। तो जरा देखिए ना जरवली की हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। दिखाओ आप। ये लो जनाब, काम बन गया। बुर्ज कोस और बुर्ज मीजान के संगम से जोहल पे जो असरात मुरत्तब होंगे उसके नतीजे में जरवली की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। मगर वो जी मगर क्या जी? बच्चे दो ही अच्छे। वो जी 3 की कोई गुंजाइश नहीं निकल सकती? 2 भी बहुत है ना बख्तर। सकन ना लो। मगर एक बात का ख्याल रहे, गांव की जो जमीन सरकार स्कीम के लिए आपसे हासिल करना चाहती है वो आपके हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये जमीन जरवली की अफजाइश नस्ल के वाकयात पर असरअंदाज हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जमीन आपके बच्चे की किस्मत में है। अगर जमीन निकली तो तौबा करें जनाब, बेफिक्र हैं आप। सरकार हमारी जमीन के करीब भी नहीं आ सकती। हाँ, इसमें आपकी भलाई है। अब इजाजत जनाब। इजाजत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आओ, मान गया तो। स्टीनो साहब, हर इंसान को शीशे में उतारा जा सकता है, बस जरा उसकी दिलचस्पियों, जरूरियात और ख्वाहिशात का अंदाजा लगाकर जर्ब लगानी पड़ती है। सर, क्या इल्म और दानिश के मोती बिखेरे हैं आपने। मैं अच्छी तरह समझ गया, मगर लाला अगर लेने के देने पड़ गई तो? अगर वगर से काम नहीं चलेगा यार, कोई बहादुरी दिखाओ, कोई जुर्रत का मुजाहिरा करो यार। वैसे मामू हजरत, इस ड्रामे में मेरा क्या किरदार होगा? देखा देखा, ड्रामा कहता है हमारे मंसूबे को। ये ड्रामा नहीं खानशाह, उल्लू नामी के इशाद का दारो मदार, वो मेरा मतलब है हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। बल्कि यूं समझो कि बुर्ज कौस और बुर्ज ज़ुहल के संगम से मेरा बच्चा, मेरा मतलब ये है ना कि हमारी आइंदा नस्ल इस जमीन पर हल चलाएगी। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। अच्छा, तो अब ऐसा करो कि तुम इधर यहाँ खड़े हो जाओ। हो गए खड़े? और तुम्हें यहाँ से आवाज लगानी है, समझ तो गए ना? बस। भिंडी गलत, तोरी गलत, टमाटर राजा बारी, सस्ता टमाटर, सस्ता टमाटर। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो लाला? ये लड़का हमें मरवाएगा। तो मामू फिर डिक्टेशन देना, किस तरह से लगानी है मुझे आवाज? ओहो, पुराने जमाने में बादशाहों की आमद पर चौबदार किस तरह आवाज लगाते थे? मामू हजरात, मैंने किसी बादशाह का जमाना नहीं देखा, क्योंकि मैं तो खुद जमहूरियत के दौर की पैदावार हूँ। ओए, तुमने कोई ड्रामा नहीं देखा? ड्रामा जमहूरियत का? ओहो, बादशाहों वाला। ओए ओए ओए, रोजाना फिल्में देखता है, रोजाना फिल्में देखता है, ऐसी तंग करने वाली बात है। हाँ बस दाजी, शावली तुम जाओ उस कमरे में। ठीक है चलो ना यार, क्या चाहती हो? खड़े हो जाओ बस, बाकी तो समझ गए ना। शाबाश। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, खाने खाना, झूठ के दुश्मन, सच की आन, बाबाए वाला शान, बसत आन बान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? देखा तो क्या ऐसी चीजें लगा रहे? हाँ, दादी आ गए, हमारे दादी आ गए, हमारे प्यारे दाजी, अच्छे दाजी, आप कहाँ थे? क्यों? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं दाजी। दाजी, आप चारपाई पर बैठे बैठे, चारपाई पर। देखो ना लाला, कितने थक गए हैं हमारे प्यारे दाजी। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? वे शाहनाज है, वो कहाँ हो तुम सब?
मुझे बचाओ इन खुशामदी तत्वों से। वो जी हमसायों के घर गए हैं जी, अभी आ जाएंगे। वो अवन खान का बेटा पैदा हुआ है ना, तो मुबारकबाद देने के लिए गए हैं जी। आप तशरीफ तो रखें दादी। ये क्यों हंसता है? हाँ हाँ, क्यों हंस रहे हो खान साहब? जाओ भागो भागो, चलो चलो जाकर बाहर हंसो, बाहर हंसो। अच्छा अब बताओ बात क्या है? दादी आप केला खाएं। अजीब आदमी हो, केला खाए। क्यों? छिलका उतार कर दो दाजी को। अब दाजी खेले से खुद छिलका उतारेंगे हैं? उठो, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? जी, जी। मतलब की बात करो जरा। गोशावली तुम बता दो दाजी को। तुम बताओ लाला। मुझे एक भी न बताओ, भागो भागो। दाजी दाजी दाजी, मैं बताता हूँ दाजी। बात दरअसल ये है ना दाजी कि बुर्ज कौस और बुर्ज ज़ोहल के संगम से, वो मेरा मतलब है कि मैं अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोच रहा था जी। ये क्या कह रहा है? ये बात नहीं है दादी, बच्चा बच्चा तो खुदा की देन होती है। मामला सब उल्लू नामी की इशारत का है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है निकबख्तो? दाजी दाजी, इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम शौक से नूर नजर लख्त जिगर पैदा करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ओए शायर से। जी दादी। देखो, उल्लू नामा क्या, तपूस नामा, हर नामा लिखो। मैंने तुम्हें कभी रोका है? कभी नहीं दादी। तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत है निकबख्तो? ये ढोल की आवाज कहां से आ रही है? बलबीर खान जिंदाबाद, अंदर खान जिंदाबाद, मलक साहब जिंदाबाद, बलबीर खान जिंदाबाद, अंदर खान जिंदाबाद, मलक साहब जिंदाबाद। मोहतरम जनाब मलिक साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आप सब क्या बात है निकबख्तो, मुझे भी तो समझाओ ना। बात यह है कि हम अपने आबा अजदाद की जमीनें सरकार की स्कीम पर कुर्बान नहीं कर सकते। क्यों? गुज़िश्ता जुमे की शब को मैंने इन जमीनों पर भूतों को भंगड़ा डालते हुए देखा है। ए भूतों के सरदार, मेरी बात सुनो। और हम इन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम ये जमीन सरकार को नहीं देंगे। तुम पर तो मेरा बस चल सकता है ना, खामोश खड़े रहो निकबख्ता। मेरी बात सुनो, मैं इस भूतों के सरदार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार स्कीम के लिए कौन सी जमीन लेना चाहती है? दरिया के किनारे, गांव के मशरक की तरफ। दरिया के अच्छा अच्छा, अब समझा। क्या वहाँ राजा इंद्र का अखाड़ा है? वहाँ पर नीलम परी का रक्स होता है? अभी क्या पता? मुझे पता है, मुझे पता है। वो बंजर और रेती जमीन जो किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए खरीदी जा रही है। कमीशन? हाँ हाँ, कमीशन। ये छोटे बड़े चमचे इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। ये चाहते हैं कि सरकार हमारी गांव की अच्छी जमीनें न ले, बल्कि ये जिसके चमचे हैं ना, उसकी बेकार जमीन ले ले। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। हम अभी और इसी वक्त नुमाइंदे से बात करते हैं, मगर पहले इनसे पुलिस लगा।